हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एक मूवी के बारे में नहीं बात करने जा रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक इंसान के बारे में, एंड दैट पर्सन इज सुपरमैन। जब हम सुपरमैन की बात करते हैं तो आज की जनरेशन सुपरमैन को जानती है हेनरी कैविल के नाम से, या फिर अगर हम थोड़ा पहले जाए तो वो जो एक जैसे बैटमैन के इतने कैरेक्टर्स रहे हैं कि बैटमैन पे मल्टीपल लोगों ने भी फिल्में बनाई हैं, मल्टीपल एक्टर्स बैटमैन बन चुके हैं, बट वो जो एक ऑरा होता है वो बैटमैन और बाकी मार्वल की फिल्मों से भी बहुत पहले एक एक्टर ने क्रिएट करा था सुपरमैन के लिए, कि पूरी दुनिया उनको सुपरमैन मान चुकी थी। अगर आप हिस्ट्री के देखें, अगर उनके बारे में सुने, लोग एक्चुअली उनसे ऐसी ऐसी हेल्प्स मांगते थे कि सेव माय फैमिली, या फिर अगर किसी की एक्सीडेंट हो रही है तो आप वहाँ पे क्यों नहीं थे। लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया था कि वो सुपरमैन है। अगर आप कहीं उस चीज़ को थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करें तो एक टाइम था 90s अर्ली 2000 में जब शक्तिमान आता था, एंड बच्चों में एक अलग ही पागलपन था शक्तिमान के लिए, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ अलग देखा नहीं था कि एक आदमी ऐसा भी हो सकता है। और वही चीज़ वहाँ सिर्फ बच्चों के लिए नहीं था, इवन एडल्ट्स जो थे वो पागल थे उस इंसान के लिए, उसके उस पर्सोना के लिए, एंड दैट पर्सन वाज क्रिस्टोफर रीव्स। तो उनकी एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज वार्नर ब्रदर्स रिलीज कर रहे हैं जिसका नाम है सुपरमैन द क्रिस्टोफर रीव स्टोरी। आई नो ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने वाली है, क्योंकि अगर आप क्रिस्टोफर रीव के बारे में जानते होंगे, उनका एक्सीडेंट एंड उनकी लाइफ आफ्टर बीइंग अ सुपरमैन, तो आपको पता होगा कि उस इंसान ने इतने लोगों को इंस्पायर किया, ना सिर्फ एक कैरेक्टर से बट फ्रॉम हिज पर्सनालिटी एज वेल। तो एक बार ट्रेलर पर रिएक्ट करते हैं। ये ट्रेलर डेफिनेटली बहुत इमोशनल होने वाला है, बट लेट्स सी। तो 3 2 1 गो। Everybody's looking for a hero. I am not a hero. That was a part. I played the part. I'm not that man. Hands down, he was Superman from day one. I realized that if I could pull off this part, it would change my life. John Houseman said, Mr. Reeve, it is very important to become a serious classical actor. Unless, of course, they offer you a load of money to do something else. He convinced me when I first met him that he would fly. Doing things with my dad, it was all about activity and action. Riding bikes, playing soccer, skiing. Carpe diem, Al! My dad was very competitive, and he didn't necessarily slow down. We said goodbye, and he gave this wave. That was the last time I saw him on his feet. Mr. Grieve currently has no movement or spontaneous respiration. Superman, crazy. Just that simple little thing over the horse. I'd ruined my life and everybody else's. I won't be able to ski, sail, throw a ball to Will. Won't be able to make love to Dana. Maybe we should let me go. She came flying in, and she just yelled, "I love you. I love you." And then she said the words that saved my life. You're still you, and I love you. He and Robin were such good friends because they could match each other. Robin also had struggles that he dealt with his whole life, and I think that they both were aware of darkness. Brother Chris is fighting like crazy. When you find people who fight like that but still keep their humanity, that gives you great hope. That is tough because I can feel him, but he can't feel me. It must have been hell for my mom, too, knowing what she had lost. I felt I needed to do something, not just for myself, but for everyone else in the same condition. The fact that Superman was in a wheelchair and was willing to go public with it was huge. Help is on the way.
The Christopher and Dana Reeve Paralysis Act. People are literally walking because of him. What is a hero? My answer was that a hero is someone who commits a courageous action without considering the consequences. Now my definition is completely different. I think a hero is an ordinary individual who finds the strength to persevere and endure in spite of overwhelming obstacles. I wouldn't have missed this for the world. डेफिनेटली जैसा मैंने कहा था कि बहुत इमोशनल होने वाली है। वो एक लेजेंड है अगर हम इंडियन सिनेमा में बात करते हैं एक्टर्स की, जैसे अमिताभ बच्चन है, रजनीकांत है, या अगर हम थोड़ा पहले की बात करें देवानंद, दिलीप कुमार, ये ऐसे एक्टर्स थे जिन्होंने पूरा एक जनरेशन कहना बहुत छोटी बात होगी, मल्टीपल जनरेशंस उन्होंने डिफाइन करे। कितने एक्टर्स हैं जो इसीलिए एक्टर हैं क्योंकि इन लोगों ने उनको इंस्पायर करा है। क्रिस्टोफर रीव वाज वन सच पर्सन। एंड एक जो होता है आज के टाइम में तो बहुत कॉमन हो गया है जब हम बात करते हैं कि भाई एक पब्लिक लाइफ होनी चाहिए, प्राइवेट लाइफ होनी चाहिए, बट देयर वाज अ टाइम जब एक्टर्स अपनी एक जो पर्सोना है उस चीज के पीछे ही रहते थे। जैसे अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड में बहुत फेमस था, एक बहुत फेमस एक्टर थे राजकुमार। तो हमेशा ये आप कभी भी इंटरव्यू सुनोगे, कभी भी देखोगे तो ये चीज़ हमेशा बात होती है कि राजकुमार का एक क्लॉज होता था कि वो अगर मूवी करेंगे सो ही इज़ नॉट गोइंग टू डाई इन दैट मूवी, चाहे कुछ भी हो जाए वो मरेंगे नहीं। बहुत सारे एक्टर्स का हमने सुना है कि उनका ये होता है कि वो भाई कभी विलन से मार नहीं खाएंगे, तो वो क्योंकि उनको एक अपना पर्सोना मेंटेन करना होता है। एंड एक इंसान जो सुपरमैन है पूरी दुनिया के लिए ही इज लाइक कि एक अलग ही आइडल है। एंड वो इंसान जब पैरालाइज हो जाता है उसके बाद वो ओपनली आके इस चीज को लोगों के सामने रखता है। एंड व्हाट ही डज after being paralyzed is the person like is the real superhuman being कि the way he fought, जिस तरीके से उन्होंने अपना ट्रस्ट बनाया ऐसे लोगों के लिए जो कि पैरालाइज्ड है कि उनकी हेल्प के लिए। एंड आज उस ट्रस्ट के कारण कितने लोग वापस से चल पा रहे हैं, वापस से अपनी जिंदगी जी पा रहे हैं। दैट इज अ रियली इंस्पिरेशनल स्टोरी। सो ये डॉक्यूमेंट्री is going to be really emotional and interesting, and definitely अगर एक inspiring documentary series की बात करते हैं तो we should give it a watch, and comment section में do let me know कि आपको कैसा लग रहा है। and that's it for this video। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।